اور وہی مسلمان جو وعدہ کر کے گیا باہر جانے کے بعد وہ جو ایک صف میں کھڑا تھا مستحق تھا، اب وہ فرقے میں گروہ بندی بھی کا شکار، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے، ایک دوسرے کی برائی تلاش کرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ کافر ہو گئے۔ خوارج نے علی کو کہا کافر ہو گئے، اور جب ان کے بارے میں سوال ہوا تو علی نے فیصلہ کیا۔ علی نے کہا ہؤلاء اخواننا بغوا علینا، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ راہ بھٹک رہے ہیں، یہ بہت گئے ہیں، لیکن ہیں ہمیں مسلمان۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ کوئی ولی ہو علی کے بغیر نبی تک نہیں، کوئی عالم ہو علی کے دروازے کے بغیر نبی کی وراثت علم کو نہیں پا سکتا۔ وہ علی کی ذات ہے، اگر علی کی ذات پر ان کے جو فیصلہ ہے انہیں پر ہم عمل کر لیں تو اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں پہلا سبق تو نے عبادت سے یہی دے دیا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس ہم تیری عبادت کرتے ہیں اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ تو سوچی لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، جو سمندر کی لہریں دیکھتا ہے وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قدر و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس نے ہمیں گزشتہ جمعہ کی طرح اس جمعہ میں بھی اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کوئی بات تھی، آج ہم دکان نہیں کھولیں گے، آج ہم کہیں رشتہ داری میں نہیں جائیں گے، آج ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ کیا بات ہے؟ آپ سفر نہیں کرنا چاہتے، آپ رشتہ داری تک نہیں جانا چاہتے، آج ہماری دکانیں بند رہیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم صبح سے تیاری کریں گے، کس کے لیے؟ جمعہ کے لیے، عبادت کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ خود تیار ہوئے، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، بچوں کو بھی ساتھ لیا اور مسجد کی طرف چلے آئے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، آپ خاص ہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ آج جمعہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ہفتہ کے بارے میں اپنا محاسبہ ہم کریں گے کہ ایک ہفتہ میں ہم نے کیا کیا، کتنی نیکیاں ہم نے کی، کتنے گناہ ہم نے کیے،
आज सब उस रब की बारगाह में पेशानी रखकर अपना मुहासबा करेंगे। आए, नमाज पढ़ लिया आपने, खुशी खुशी अल्लाह की इबादत की, बाहर निकले, कहां से आ रहे हैं? इबादत करके आ रहे हैं। क्या अपने रब की बारगाह में पेशानी झुकाकर आ रहे हैं? ये पेशानी कहीं झुकती नहीं, ये पेशानी जिसको अल्लाह ने मुकर्रम बनाया है, उस पेशानी को हमने अपने माबूद की बारगाह में झुका कर इबादत करके आए। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की हमदो सना करके आए। नमाज हो गई, मुसाफा भी हो गया। अब हमने आपसे सवाल किया, इबादत तो हो गई, नमाज हो गई, लेकिन नमाज में आपने सीखा क्या? इस नमाज से कोई सबक भी आपको मिला? कहा, हम सबसे पहले जब मस्जिद गए तो जब नमाज खड़ी हुई तो इमाम साहब ने सबसे पहला लफ्ज यही कहा कि सफों को दुरुस्त कर लें, कांधे से कांधे मिला लें, कांधा से कांधा मिला लें, सफ को दुरुस्त कर लें, सीधे हो जाए। कहा कुछ पैगाम मिला। अल्लाह इस इमाम के वास्ते से अपने घर में बुलाकर सबसे पहला पैगाम ये दिया, हे मुसलमानों, आपस में जिस तरह मेरे घर में कांधा से कांधा मिलाकर बगैर किसी फर्क के, बगैर किसी इम्तियाज के मोहब्बत के साथ खड़े हो गए, मजबूती के साथ एक दीवार बनकर रहे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहे, तो सिर्फ इबादत ही में साथ मत रहना, ये कांधा मिला मिलाकर तुम बाहर भी अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के साथ, मजबूती के साथ, मोहब्बत के साथ रहे। ये पहला सबक मिला। कोई इम्तियाज खत्म, सारे इम्तियाज खत्म। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस नस्ल का है, कौन किस खानदान का है, कोई नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। ए परवरदिगार आलम, हमें पहला सबक तूने इबादत में यही दे दिया कि हम सब एक हैं, हम सब में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह अल्लाह ने अपने घर में एक साथ रखा, मोहब्बत के साथ, हम घर से बाहर जाने के बाद भी इसी तरह मोहब्बत के साथ रहे। उसके बाद क्या कहा साहब? कहा, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। सारे लोगों ने हाथ उठा दी, अल्लाहु अकबर। सारी किबरियाई, सारी बड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। अब कोई अल्लाह के अलावा कोई तकब्बुर न करे, कोई अल्लाह के अलावा अपने आप को बड़ा न कहे। बड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए। तकब्बुर खत्म हो जानी चाहिए। जब तुमने अल्लाह अकबर कहा तो दिल से तकब्बुर खत्म हो गई कि सिर्फ और सिर्फ किबरियाई एक जात के लिए। अब क्या कहा इमाम साहब ने? कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसी रब के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और तमाम की तारीफ अल्लाह के लिए, सब उसी की तारीफ सब है। ये चरिंद क्या है, ये परिंद क्या है, ये शजर क्या है, ये हजर क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये पत्थर क्या है। वहिम मिन शहीद इल्ला, वहिम मिन शहीद इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहू। कुरान कहता है, लोगों सुनो, तुम इस गुमान में ना रहना कि अल्लाह तुम्हारी तस्बीह का मुहताज है, हमद का मुहताज है। कोई शय दुनिया में नहीं है, मगर हर शय अपनी जबान से अपने रब की हमदो सना करती है। लेकिन फर्क यह है कि तुम समझ नहीं सकते। हर चीज, हर शय उसी की हमद है, हर शय में उसी की तारीफ है। क्यों तारीफ कर रहे हैं उसी की? कहा रब्बिल आलमीन है, वो रब है सारे जहान का, इसीलिए सब तारीफ कर रहा है। रब का मतलब क्या है? पालने वाला, परवरिश करने वाला। पालता कैसे है?
पालने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं। अल्लाह ने अपने मखलूक को पैदा किया, हमें पैदा किया, हमारी परवरिश की। पहले हमारे आने से पहले ही जमीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का सामियाना लगाया, ये दरख्त, ये शजर, ये पूरी दुनिया की बंदोबस्त नेमतें अता कर दी। उसके बाद भेजा कि अब तुम जमीन पर चलो, आसमान के नीचे रहो, ये दुनिया की जितनी नेमतें हैं हमने सब तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम इसे फायदा उठाओ, और तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वही रब है, सबको परवरिश करता है, रिज्क देता है, रोजी देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को जब मैदान में छोड़कर वापस आए तो अर्ज किया, परवरदिगार आलम वर्जुक अलहु मिनस समरात मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर आला वमन कफर। इब्राहिम ने कहा, परवरदिगार आलम, हमने अपनी बीवी और बच्चे को इस बयाबान में बसाया है, इन्हें फलों से रिज़्क अता फरमाना, जो तुम पर ईमान लाए उसे रिज़्क देना, जो तुम पर और आखिरत पर ईमान लाए उसे फलों से रिज़्क देना। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम, जो हम पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए उसे रिज़्क दें। सुनो इब्राहिम, इब्राहिम सुनो, मोमिन को मोमिन है जो मुझे नहीं मानेगा हम रिज़्क उसे भी देंगे, जो हमें छोड़कर हजारों के दूसरों के सामने अपनी पेशानी झुकाएगा उसे भी हम रिज़्क देंगे। हमें माने या ना माने, दुनिया में हम किसी पर रिज़्क बंद नहीं करते हैं, हम किसी का रोजी तंग नहीं करते हैं, हर एक को हम देते हैं रिज़्क। अल्लाह ने कहा, क़ाल वमन कफ़र, दुनिया में है अगर मुझे ना माने फिर भी मैं उसे खिलाऊंगा, आखिरत में हिसाब लेना है उसे, आखिरत में आएगा तो पूछेंगे, रिज़्क मेरा खाया, खान जमीन में, मेरी जमीन पर चला, मेरे आसमान के नीचे रहा, हमने तुम्हें पैदा किया, हमारा खाया और हमें पर ईमान ही लाया, ये हिसाब हम आखिरत में लेंगे, रिज़्क तो हम उसे देंगे। कहा रब्बिल आलमीन है, इसीलिए वो उसकी तारीफ की जाती। कहा रब ही नहीं है, कहा रहमान भी है, वो रहमान है, रहम करने वाला है, सब पर रहम करता है, कोई हो कोई भी हो सब पर रहम करता। रहीम है, खास मुसलमानों पर भी रहम करता है, आम लोगों पर भी रहम करता, खास लोगों पर भी रहम करता। वो सिफत है, वो डांटता नहीं, वो भगाता नहीं, अपनी बारगाह से भगाता नहीं है, वो तो बहुत बड़ा रहमान है, वो रहम करने वाला, सबको रहम करता है, रहम करता है, रहमान है, रहीम है। और क्या है? कहा मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक वही है, ये दुनिया और आखिरत हर चीज का मालिक वही है। जब इमाम ने कहा, हे लोगों सुनो, वो अल्लाह है जो रब है, वो अल्लाह है जो रहमान है, वो अल्लाह है जो रहीम है, वही रब है जो यौम जज़ा का मालिक है। बंदों ने कहा, इय्याका नअबुदु, हे परवरदिगार आलम, हम तेरी बारगाह में पेशानी झुकाते हैं, सबको तू ही है, सब तू ही है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है। अब तो बंदा इय्याका नअबुदु पर आ गया। आप समझते हैं इय्याका नअबुदु का मतलब क्या होता है? पहले कहते थे वो अल्लाह है, वो कहा जाता है दूर वाले को, कहता वो है वो है वो है, लेकिन अल्लाह की हमद करते करते, अल्लाह की रहमानियत को बयान करते करते, रहम को देखते इंसान इस कदर करीब हुआ रब से, इस कदर करीब हुआ रब से कि कहा इय्याका नअबुदु, तेरी बारगाह में पहुंच गए, तेरी बारगाह में हमने पेशानी रख दी। अब कोई वो नहीं कहेगा, हर आदमी कहता तेरी बारगाह में इबादत करते हैं। तेरी का मतलब क्या है? तेरी उसे कहा जाता है जो मौजूद हो, जो सामने हो। नबी ने कहा इबादत ऐसी करो गोया कि तुम रब को देख रहे हो। इय्याका नअबुदु तो अपनी ज़बानी से कह रहे हो, हम तेरी इबादत करते हैं, उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर ना हो तो कम से कम ये तो सोच ही लो कि वो तुम्हें देख रहा है, वो तो तुम्हें देख रहा है, जो समंदर की तहने देखता है वो तुम्हें भी देख रहा है, तो उसके सामने खड़े हो। अब क्या कहा? इय्याका नअबुदु, इबादत हो गई। अब इबादत के बाद क्या कहा? जब पेशानी जमीन पर रखी,
इज्ज और इंतशारी, ताअत और ज़ुहद यानी तवाज़ो की इंतहा ये है कि इंसान जमीन पर पेशानी रखे, पेशानी रख दी, कहा पेशानी नहीं हाथ भी रख दिया, घुटने भी रख दिए, अपना पूरा वजूद तेरी बारगाह में हमने झुका दिया, रब की बारगाह में पहुंच गए। अब क्या कहा, ए रब हमारे अत्तहियातु लिल्लाह, सारी इबादत, बदनी इबादत, जिस्मानी इबादत, कौली इबादत सब तेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये अल्लाह मेरे नबी पर सलामती नाजिल, रहमतुल्लाह रहमत नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। कहा अस्सलामु अलैना, ए रब हम सब पर सलामती अता फरमा। सारे मुसलमान के लिए दुआ की, हर एक ने दुआ की, कहाँ की, रब की बारगाह में। नमाज मोमिनों की मेराज है, मेराज में जाकर मोमिनों ने कहा ए अल्लाह हम सब पर सलामती अता फरमा, सारे मुसलमान पर सलामती की दुआ कर दी। कहा इतना ही नहीं, कहा बीच में दरूद पढ़ा, नबी को वसीला बनाया, नबी के आल को वसीला बनाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, रहमत और सलवात नाज़िल फरमा नबी पर, आले नबी पर। फिर कहा अल्लाहुम्मा गफिरली व लिवालिदैया व लिमन तबअनी, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। कहा किसकी, काल हया मिनहुम वल अमवात, ए अल्लाह जो हमने जिंदा है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा, जो हमने से उठ गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। मुसलमानों के लिए दुआएं कर ली, सलामती मांग ली, मग़फ़िरत मांग ली, 2 बार अल्लाह की बारगाह। कहा नमाज के बाद मुसाफा किया, अस्सलामु अलैकुम, एक दूसरे से मुसाफा किया, तुम पर सलामती हो। कहा तीसरी बार, एक बार इबादत करने आए तो 3 बार एक मुसलमान को कहा कि हे मुसलमान भाई तुम मेरे भाई हो, तुम पर सलामती हो, हमारी तरफ से तुम सलामत रहो, हमारी जबान से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, हमारे हाथ से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। 3 बार मुसलमान ने इबादत में मुसलमान के बारे में कहा ये सलामती, ये मुसलमान एक दूसरे से। अब तो उम्मीद हो गई कि अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए सलामती की दुआ कर लिया है, मुसलमान सब आपस में एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं, एक दूसरे से सलामत होने की वादा कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का वादा कर रहे हैं। अब बाहर जाने के बाद लड़ेगा नहीं, अब मुसलमान नहीं लड़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में वादा करके आए हैं कि अल्लाह एक सब में खड़े होकर हम लोग मुस्तैद हो गए थे, अब हमने ग्रोहबंदी नहीं होगी। ये अल्लाह तेरी बारगाह में हमने कहा कि सारे मुसलमान हमसे सलामती, सारे मुसलमान को हमसे सलामती पहुंचे, अब किसी को हमारे हाथ से तकलीफ नहीं होगी, हमारी जबान से तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ साहब, नमाज में सारी चीजें हमने कर ली, अल्लाह से वादा कर लिया, मुसलमान से मुसाफा करके वादा कर लिया,